Today, our topic is gingival recession. Before starting the topic, let's check the normal and healthy gingiva. As you can see in the picture, the normal gingival attachment to the cemento-enamel junction. Between the enamel and gingival margin, there is gingival sulcus. You can see the free gingiva, you can see the attached gingiva, and the mucogingival junction and the alveolar mucosa. This is the normal attachment to the cemento-enamel junction. Now let's talk about the gingival recession. So it is the exposure of root surface due to apical shift in the marginal gingiva. When the level of gingival margin is below cemento-enamel junction, it is recession. Recession may be considered hidden or visible based on the actual and apparent position of gingiva. As you can see in the picture, gingival margin is below the cemento-enamel junction. So what is the actual position? This is the level of epithelium attachment on the tooth, and apparent position is the level of crest of gingival margin, as you can see in the picture. Actual position and the apparent position. जो severity होती है recession की वो depend करती है actual position पे. जिंजाइवल रिसेशन की वजह से जो रूट की सरफेस एक्सपोज होती है उसको हम विजिबल रिसेशन कहते हैं, और वो पार्ट जो जिंजाइवल वॉल से कवर होता है उसको हम हिडन रिसेशन कहते हैं, और जो टोटल रिसेशन होती है वो सम होता है, सम अप होता है बोथ विजिबल एंड हिडन रिसेशन का. So what is the etiology of gingival recession? It can be anatomic factors, physiologic factors, pathologic factors, and iatrogenic factors. Let's talk about anatomic factors. It can be malocclusion, thin bony plates, high frenum attachment, fenestration and dehiscence, developmental abnormalities. अब ये फेनेस्ट्रेशन क्या होता है? ये आइसोलेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे रूट इज़ डीन्यूडेड ऑफ बोन और रूट सरफेस सिर्फ जिंजाइवा से कवर होती है. इसमें जो मार्जिनल बोन होती है वो इंटैक्ट होती है, जबकि जो डिहिसेंस होता है उसमें डीन्यूडेड एरियाज एक्सटेंड थ्रू द मार्जिनल बोन. अब इस डिफेक्ट को हम डिहिसेंस कहते हैं. फिजियोलॉजिक फैक्टर्स में जेनेटिक, एजिंग, ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट ऑफ टीथ आ जाता है. पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में टूथब्रश इंजरी, इम्पैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, प्लाक इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्जिकल ट्रीटमेंट. हाइड्रोजेनिक फैक्टर्स में प्रॉपर रेस्टोरेशन, प्रोलॉन्ग्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, क्लैस्प्स, डिलीटेरियस हैबिट्स लाइक होल्डिंग पिन्स एंड नेल्स, ये चीज़ें आ जाती हैं. सो व्हाट इज़ द एटियोपैथोजेनेसिस? जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है. ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. जैसे जैसे लियन प्रोग्रेस करेगा कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा, एंड इट कैन लीड टू द फ्यूजन ऑफ ओरल एपिथेलियम विद जंक्शनल एपिथेलियम. इट रिजल्ट्स इन एपिकल शिफ्ट ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा, रूट एक्सपोज हो जाएगी और रिसेशन हो जाएगी. ये जो पेरिडोंटल बैक्टीरियाज होते हैं ये कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट और अदर इम्यून सेल्स. ये सेल्स फर्दर कुछ फैक्टर्स को स्टिमुलेट और एक्टिवेट करते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन करते हैं और बॉन्ड टिश्यू रिजॉर्प्शन करते हैं. सो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ जिंजाइवल रिसेशन? First, we discuss about P.D. Miller's classification. There are four classes: Class 1, Class 2, Class 3, and Class 4. In Class 1, there is marginal tissue recession that does not extend to the mucogingival junction. There is no loss of bone or soft tissue in interdental area. This type of recession can be wide or narrow, as you can see in the picture. In Class 2, there is marginal tissue recession that extends or to beyond the mucogingival junction, and there is no loss of bone or soft tissue in interdental area. It can be wide or narrow. In Class 3, this recession extends to or beyond the mucogingival junction और इसमें bone और soft tissue loss भी होता है. Class 4 में gingival recession के साथ साथ severe bone और soft tissue loss, as you can see in the picture.
Class 4, there is severe bone loss and soft tissue loss interdentally. According to Sullivan and Atkin classification, there are four classes. In class 1, the defect is shallow narrow. In class 2, the recession is shallow wide. In class 3, the recession is deep narrow. In class 4, the recession is deep wide, as you can see in the picture. So what is the clinical significance of recession? जब रूट एक्सपोजर होता है ना, तो वो केरीज के लिए हाईली ससेप्टेबल हो जाती है रूट. अब ये एस्थेटिकली भी अनएक्सेप्टेबल होता है. जब पेशेंट स्माइल करेगा, रूट्स नज़र आ रही होगी, तो वो एस्थेटिकली ठीक अच्छा नहीं लगेगा. रिसेशन के बाद जब रूट एक्सपोज होती है, अगर सीमेंटम का वेयर ऑफ हो जाए, तो जो उसके नीचे अंडरलाइन जो डेंटिनल सरफेस होती है, डेंटिन की सरफेस होती है, वो हाईली सेंसिटिव होती है. ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है. इंटरप्रॉक्सिमल रिसेशन की वजह से स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं. वहाँ पे प्लाक अक्यूमुलेशन आसानी से होगा, फूड डेब्रिस अक्यूमुलेट होंगे. स्पीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ जिंजाइवल रिसेशन? अब ये डिपेंड करता है कि रिसेशन किस टाइप का है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, किस फॉर्म में है. एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को हम रिमूव करेंगे. रूट सरफेस जो एक्सपोज हो जाती हैं वो हाईली सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हम लोग फ्लोराइड वार्निश की एप्लीकेशन करते हैं. इसके अलावा टॉपिकल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स अप्लाई करते हैं. एक्सपोज्ड रूट्स को कवर करने के लिए जिंजाइवल वेनियर्स यूज़ करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. अगर पेशेंट गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकता, तो फिर हम अटैच जिंजावा की वाइडनिंग करते हैं. रिसेशन की ग्रेडिंग की बेस पर भी हम ट्रीटमेंट करते हैं. जैसे क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, क्लास 3 के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, क्लास 4 के लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अब क्लास 1 एंड 2 में ओरल हाइजीन की इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, स्केलिंग पॉलिशिंग करेंगे, रूट को कवर करने के प्रोसीजर्स करते हैं. क्लास 3 में ओरल हाइजीन की इंस्ट्रक्शन तो देते ही हैं, इसके अलावा म्यूकोजिंजाइवल सर्जरीज होती हैं. क्लास 4 में ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करते हैं, म्यूकोजिंजाइवल सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं. फिर मेंटेनेंस फेज़ आती है. ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. जिंजाइवल रिसेशन कैन बी लोकलाइज्ड एंड इट कैन बी जनरलाइज्ड, यानी कि 1-2 टूथ तक रिसेशन हो सकती है, या जनरलाइज्ड काफ़ी टीथ इन्वॉल्व हैं रिसेशन, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा. अब लोकलाइज्ड के लिए हम क्या करते हैं, गाइडेड टिश्यू रिजनरेशन, डबल पैपिलन एंड लैटरली डिस्प्लेस्ड फ्लैप, कोरोनली डिस्प्लेस्ड फ्लैप एंड सेमी ल्यूनर फ्लैप्स. फ्लैप रेज करते हैं, डिफेक्ट को क्लोज करते हैं. जनरलाइज्ड होगा तो फ्री सॉफ्ट टिश्यू ऑटोग्राफ्ट, सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट, कोरोनली रिपोजिशनिंग फ्लैप्स. इन द पिक्चर यू कैन सी द जिंजाइवल रिसेशन. उसमें फ्लैप रेज किया है, उसको करेक्ट किया है, डिफेक्ट को क्लोज किया है, सुचरिंग की है.